So, hello everyone. Today we would be picking up with some legal topics as we had planned. So, I would be sharing my screen as well for that. So, basically, we have picked up class 12 legal studies. That, yeah. So, I think we're good to go with this. So this is, I hope my screen is visible. This is class 12 legal studies. So we're gonna see a few topics over here, right? We're gonna pick up one of them. And I will be covering up with class 11th legal studies as well. So it's the same 12th and 11th. It's basically forms the basis of your everything that you will study in legal or in law further in life. So these are very basic things. Not very topics are of course not basic, but the content there in the topics that is quite basic. Okay. So uh, let's just review the list first. So judiciary is a very theoretical one that can easily be done. So I'm going to cover it towards the end. Alternative dispute resolution, ADR. ADR is something which is of importance. I'm going to take it on priority. This whole section business laws I'm going to take on priority because ये four things are important. Torts and contracts ये still बहुत छोटे छोटे topics हैं, but of course intellectual property and normal property law that makes sense. Okay, so these things are this thing particular law and sustainable development. This is a very theoretical topic. Towards the end we're going to do forms of legal entities. This is basically based on a partnership. All those who are giving CLAT or who are preparing for CLAT, right? There must be, there are passages on partnership as well. There are different things on partnership. तो partnership वाली चीजें legal entities क्या है, LLP क्या है ना? Then what is sole proprietorship, one person company? So all of these things we're gonna do. So this is there in this criminal laws. This also we can consider it's not very theoretical. It also has some concepts, right? Then human rights. These two are very theoretical topics. However, we have some of the fundamental rights also covered in this. We have the violate जो दूसरा वाला chapter है, the human rights violations. Over here we have different kinds of bodies which basically look after human rights. है ना, women commission हो गया, human rights commission हो गया, theoretical towards the end. International law gonna take on priority. This particular chapter makes sense. It forms again basis of what you're going to study. We have everything, the North Sea continental shelf case, everything in this. So gonna take this on priority. Legal profession, this is a thing which is again theoretical. Legal services is again legal services something I won't say it's very theoretical, it's practical, right? But gonna take this as well. So legal services also, legal profession mainly जो चीज आता है, like if you think from exam point of view, from 12th point of view, या फिर for basically for 12th and for CLAT entrance exams, this video would be pertaining to these particular segments, right? तो लीगल प्रोफेशन में अगर हम मेजर चीज बात करें, क्लास 12th का ही क्वेश्चन होता है कि आप लॉयर कैसे बनते हो, यूएस में, यूके में, इंडिया में। ये तीन टॉपिक्स आते हैं इसमें, और तो उसमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है? बट टुडे व्हाट आई हैव प्लान्ड, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद प्रॉपर्टी लॉ. सो दिस इज अ वेरी जनरल रिव्यू दैट आई हैव गिवन टू यू राइट नाउ. What exactly we're gonna do, right, in the upcoming classes, and what all is there, what all is not there, how we should look at the syllabus, right? Picking things on priority. So अगर हम देखें प्रॉपर्टी लॉ, थोड़ा सा वी गोना सी द इंट्रोडक्शन. अगेन इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को छोटे से छोटा रखूं, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, और मतलब जल्दी जल्दी चीज समझ में भी आ जाए. ओके. तो अगर हम देखें, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. आई गिव रीड टू इट वेरी क्विकली. So, before the advent of the British Kingdom, each community in India was governed by the respective customary law in matters relating to transfer of property. With the establishment of formal litigation system and the absence of any legislation in this area, to begin with, the English judges applied the common law of England and thus the rules of equity, justice, good conscience with respect to disputes relating to transfer of property. Unsuitability of these provisions to the Indian conditions, resulting conflict, and the need for clarity of rules relating to the important branch of law necessitated the enactment of legislation. ठीक है? तो इसके बाद अगेन डिफरेंट कंडीशंस थी. वी वर यूजिंग ब्रिटिश लॉज ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग कम्युनिटीज होती थी, अलग अलग कम्युनिटीज के डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते थे, ठीक है? उस टाइम ब्रिटिश पे अपने लॉज चला रहे थे बिकॉज दिस कॉमन लॉ वाज अप्लाइड. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी अंडरस्टूड कि ये सेटलमेंट ऑफ कोर्स सूटेबल नहीं है हमारी अपनी कंट्री के लिए, सो वी नीड टू गो अहेड विद समथिंग एल्स. Drafted in 1870, transfer of property law saw the light of the day in 1882, provided basic principles for transfer of both movable and immovable property. And
Based primarily on the English law of real property, it attempted to mold these principles to suit the Indian conditions. Moreover, a separate enactment titled the Sale of Goods Act of 1930 was passed to deal with the movable property by sale. ठीक है. And the transfer of property contains general principle of transfer of property, retail rules with respect to specific transfer of immovable property by sale, exchange, mortgage, lease and gift. Okay. तो अगेन, पहले कोई लॉ नहीं था. पहले यू हैड योर ओन रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू यूज टू रूल. उससे पहले, उसके बाद आपके लॉज आए. लॉज में क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लगाए. ठीक है, सूटेबल नहीं था इंडियन कंडीशन के लिए. देन वी टॉक्ड अबाउट कि दो लॉज आए. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन वाज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता था. एंड देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका मूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है. ठीक है, just remember this. This question is not going to come to right. Basic understanding. ठीक है. Types of property. अब आते हैं, the word property has not been defined in the act. It is a very wide meaning and it includes properties of all descriptions. Movable, removable, simple. Then it includes movable properties such as cases, books, etc. And it includes immovable properties such as lands or houses. It also includes intangible properties such as ownership, tenancy and copyright. ये copyright है. We're going to do separate chapter, intellectual property rights, जहाँ पर हम इसको cover करेंगे. ठीक है, copyright and patent. So don't worry. तो हमारे देख लिया कि प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है. वो इंटेंजिबल भी हो सकती है. दो चीजें होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल. मेरी नहीं पता, डजंट मैटर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट. इंटेंजिबल होता है जिसको टच नहीं कर सकते. कॉपीराइट इज समथिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते. विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ स्किल्स दैट वी हैव एक्वायर्ड, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, राइट, व्हिच इज ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक यूज. या फिर हो सकता है अपनी नॉलेज से हम कोई साइंटिफिक इनोवेशन कर रहे हो, तो उसमें वो बोलेंगे हम वो पेटेंट कर रहे हैं. तो उस केस में भी अगर आप देखना चाहोगे तो in that case as well, that is all what intangible property. However, movable and immovable property, they're of course tangible. You can touch them. You can touch your house. You can touch your car. Okay. Ab, um, next, if we say, as per section 3, immovable property does not include standing timber, growing crops and grass. Remember this. इन मॉक्स क्या होता है, जब क्लैट के लिए आप जाते हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेड करते हो, ये चीजें लिखी होती हैं पैसेजेस में. ठीक है, ये आपको बस उठानी होती है इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 और इन केस यू आर समथिंग लाइक समवन हु इज बेसिकली स्टार्टिंग विद द कॉलेज, राइट, स्टार्टिंग विद द लॉ कॉलेज. उस केस में भी क्या होता है कि आप इसको देख सकते हो वीडियो को, बिकॉज इट्स प्रीटी बेसिक. इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट द डॉट्स वंस यू रीच योर कॉलेज, राइट. तो स्टैंडिंग टिम्बर, राइट, देन ग्रोइंग ग्रास एंड ये ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. ये चीजें क्या होती है, वो तो कट आउट कर लिया जाता है ना. लेकिन ग्रास में भी चीज है. लेकिन देखो, एज पर सेक्शन 3 तो स्टैंड लोन देखोगे तो वहां पर मेंशन्ड है कि जो ग्रास है, ग्रास एक मूवेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज आप इसको काट कर इधर उधर मूव कर सकते हो. हाउएवर इन द अपकमिंग केस लॉज ओनली वी गोना रीड कि ग्रास में भी डिपेंड करता है कौन सी ग्रास है. कोई ग्रास गार्डन में लगी हुई है, राइट, किसी जंगल में लगी हुई मान लो, वो ग्रास को आप हटाते नहीं हो, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन जब ग्रास आप अपने गार्डन से अगेन अगेन हटाते रहते हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. केस लॉस में, आपके सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आपके किसी भी लीगल स्टैट्यूट में चीजें मेंशन होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. जब चीजों को मॉडिफाई करते हैं तो केस लॉस के थ्रू करते हैं. केस लॉस में डिफरेंट प्रीसिडेंट्स आते हैं जो चीजों को चेंज करते हैं. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस. ओके, स्टैंडिंग टिम्बर. Standing timber है trees which are fit for use for building or for repairing houses. The word standing timber includes babul tree, shisham tree, banyan, teak, bamboo, etc. And the fruit-bearing trees like mango, jackfruit, jamun, etc. Not standing timber and they are immovable properties. ठीक है, तो अगर हमने बता दिया तीन चीजें, मैं बताऊंगी जी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कि यार आपका जो स्टैंडिंग टिम्बर है, राइट, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इधर से उधर मूव कर सकते हो. क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर को आप घर बनाने के लिए नॉल यूज करते हो. फ्रूट बेयरिंग ट्रीज का एग्जाम्पल याद रखना. ऐसा नहीं कि हम फ्रूट को निकाल सकते हैं, फ्रूट को निकालते हैं, फ्रूट के ट्री को नहीं निकालते हैं. ठीक है, मैंगो ट्री उधर ही स्टैब्लिश रहेगा, तो मैंगो ट्री है इमूवेबल प्रॉपर्टी ही. केस लॉ, रिमेम्बर इट. फतीमा बीबी वर्सेस इरफाना बेगम. इरफाना बेगम, क्या होता है केसेस में अगर आप देखोगे, लाइक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू रीडिंग दिस फॉर क्लैट और एंट्रेंस एग्जाम्स, यू जस्ट रीड इट. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू लर्न इट अप, राइट. हाउएवर इफ यू आर इन क्लास 12, ये आ सकता है लिखने को. यूजुअली नहीं आता, यूजुअली मैच द फॉलोइंग आता है. लेकिन अलॉट मेनी केसेस देखोगे, इधर शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे भी है, सुक्रिया कर्डेपा वर्सेस द गुंडाकुल केस भी है, मार्शल वर्सेस ग्रीन भी है, मैडम पिल्ले, बहुत सारे आएंगे आगे. तो ये आप बस याद रखो कि यार ये मैच द फॉलोइंग में है, तो मैं पहचान लूं कि फ्रूट ट्रीज वाली बात किस में बोली थी, दूसरी बात किस में बोली थी. तो ट्राई टू कनेक्ट, राइट. ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं वेजिटेबल विच हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, विच इज पैन लीफ एंड शुगर केन, जिसको आप बिल्कुल ही निकाल लेते हो, राइट. आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका पूरा ही यूसेज है.
ठीक है, नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स प्रोड्यूस। तो ये कुछ और बेयर नहीं करता, राइट, अपने निकल अब सॉइल से निकलने के बाद, राइट, शुगर केन, पाम लीफ एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते ग्रास। ग्रास मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इफ इट इज कट टू ग्रो ग्रास इट वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ द लैंड एंड हेंस इट फॉर्म्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज राइट टू कट ग्रास। तो ग्रास में अगेन मैंने बता दिया, आपको डिपेंड करता है, यूजुअली डिपेंड करता है, बट सेक्शन 3 के हिसाब से बोलोगे तो ग्रास को मूव कर सकते हो। ठीक है, अगेन इमूवेबल में आएगा वो जब आप उसको रिमूव नहीं करोगे, as I had said पहले भी। whether grasses sorry whether trees can be regarded as movable immovable depends on the circumstances of the case. If the intention is that the trees should continue to have the benefit of further subsistence or nutriment by the soil, example enjoying their fruits, then the tree is gonna be an immovable property. But if the intention is to cut them sooner or later for the purpose of utilizing the wood for building or industrial purposes, they would be timber accordingly are regarded as movable property. कि शांताबाई स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। रिमेंबर, जब हम बात करें कंडीशन की जहां पर ट्री को एक इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं, राइट, उस केसेस में शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सिंपल। So, अब आते हैं सेक्शन 3 क्लॉज 25 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। तो अगेन हम मेंशन कर रहे हैं, सेक्शन 3 की बात करिए हमने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज एक्ट की। तो जनरल प्रॉपर्टीज एक्ट में भी मेंशन, दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर एक्ट व्हिच पर्टेन्स टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। वी शुड नॉट स्ट्रेस ओवर दिस पर्टिकुलर एक्ट मच बिकॉज इतना यूज में नहीं है। अगर आप बाकी सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स देखोगे, ठीक है, इतना यूज में नहीं है इसका। ठीक है, अगेन बुक है, ये रीडिंग इट एनसीईआरटी एंड वी शुड हैव समथिंग अबाउट इट राइट एज वेल। इफ दिस कम्स अप, दिस पर्टिकुलर एक्ट कम्स अप इन लाइफ, राइट, एनीवेयर, वी शुड नॉट बी oblivious टू इट कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ओके, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भाई जो परमानेंटली फास्टेंड हो अर्थ से, जो किसी, जो लैंड से अटैच्ड हो, ठीक है, बेनिफिट्स लैंड से आ रहे हैं, ठीक है, शैल इंक्लूड लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, permanently fastened to anything attached to earth, of course immovable property. Sukre Kodepa versus Gundakul, the court has explained that movability may be defined to be in capacity of a thing of suffering alteration. On the other hand, if a thing cannot change its place without injury to quality, it is known as immovable property. भाई कुछ चीज को अब निकाला है ग्राउंड से, टूट गई वो, राइट, उसमें ऑल्टरेशन हो गया, तो दैट केस तो थी ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इसको कैसे डिवाइड करते हो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब मैं कोई चीज लैंड से निकालूं या फिर कोई भी चीज मैं इधर से उधर करूं, उसको इंजरी ना हो चीज को, ठीक है, अगर इंजरी नहीं होती तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इंजरी हो जाती है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, बिकॉज वो मूव करने के लिए बनी ही नहीं थी। ठीक है, मार्शल वर्सेस ग्रीन, देयर वाज अ सेल ऑफ trees where they were cut and taken away and the court held that the sale was not that of an immovable property, मतलब थी वो मूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल है, ट्रीज का कुछ सेपरेट बता दी। लेकिन ट्रीज की कंडीशन के बारे में बात करें तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दो पर्टिकुलर लॉज पढ़ेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1988 डिफाइंस प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंक्लूड्स एनी राइट ऑफ इंटरेस्ट टू सच प्रॉपर्टी। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोविजन एक्ट 1980। Sale of Goods Act of 1930 defines property as property means a general property in goods and not merely a special property. ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स के बारे में बात कर, भी नॉट अबाउट कोई एक्स्ट्रा स्पेशल ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी, कोई भी जनरली जो ये सब वो सब जनरली है, टैंजिबल, इंटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। ठीक है, आपने गुड्स बता दिया। ओके, सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करो तो आप इन जनरली मूवेबल प्रॉपर्टी को रेफर करो। इस पर डिफरेंस आता है कभी कभार, वो क्लास 12th टाइम से, ठीक है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवमेंट पे बात आती है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी। दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंपल। Mere intention to transfer the movable property completes the transfer. Mere delivery with intention, but mere delivery does not. Property must be registered in the name of the transferee. Registration is optional under the Registration Act of 1908. Registration is mandatory, compulsory only if the value of the property exceeds 100 rupees. ठीक है, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट रेगुलेट करता है, ये 1930 का है, ठीक है, ये जो एक्चुअली रेगुलेट करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, एंड देन ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। ये 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में अगेन सेम चीज आती है, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक ही हैं, कि आपने डिलीवरी कर दी विद इंटेंशन कि मेरे को मान लो सी तक कुछ ट्रांसफर करना है, इन दैट केस ये होगा मूवेबल प्रॉपर्टीज, तो मेरे को ऑफकोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रजिस्टर। इमूवेबल को रजिस्टर करनी पड़ेगी कंपल्सरली अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 अगर उसकी वैल्यू
100 रुपीज से ज्यादा हो, 100 रुपीज बहुत कम वैल्यू है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, आजकल तो सब कुछ ही 100 रुपीज से ज्यादा है। बस ये बहुत ऑब्वियस है, 100 रुपीज से ज्यादा तो करना सब कुछ ही होता है। A transfer of property is the act of conveying property from one person to another in the present or future. Matters related to transfer property act 1882. Object is to regulate the transfer of property between living persons. It shall also serve as a code of contract or law governing immovable property. Then, the Transfer Property Act of 1882 provides clarity on the subject of systematic uniform law on the transfer of immovable property in India. Transfer of property may also take place by inheritance and succession, right? If you're inheriting property from someone, let's suppose your parents have died, you are inheriting their property. That is inheritance. Okay. तो अदरवाइज सक्सेशन चलता है जब बेसिकली किसी ने विल नहीं लिखी हुई, ठीक है, पेरेंट्स से किसी हेल्म में, जो भी आपके ऊपर आपके गार्डियन से आपको प्रॉपर्टी मिली है, अब वहां पर क्या है, उन्होंने विल नहीं बना रखी, ठीक है, विल नहीं बना रखी, तो बाय द सक्सेशन लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन प्रॉपर्टी नीचे डिवॉल्व होगी बंदे के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसे बीक्वेथ होगी। अब कैसे होगी, बिकॉज उस बंदे ने विल नहीं लिखी तो नॉर्मल सक्सेशन रूल्स फॉलो होगी, ठीक है। हाउएवर किसी ने विल लिखी हो तो उसमें इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। यूजुअली इसको देखा जाए तो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस सक्सेशन इनहेरिटेंस में। The laws related to the transfer governed by respective religious as the case may be. Who can transfer property? अब आपका देखो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875 का, जहां पर बोला गया है कि एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इज अ मेजर। बहुत ऑब्वियस है ना, लिखा हुआ स्टैट्यूट में भी, कंफ्यूजन ना हो। Any person who is competent to contract, a person above 18 years of age, having a sound mind and not disqualified by law, and authorized to dispose of property, is the owner of the property, or any person authorized to sell the property can make a transfer. Person who transfers property is transferor. Person to whom the transfer is being made, it is known as transferee. According to Section 8, the transferring property, the transferor transfers all the rights in the property. ठीक है, राइट्स कैसे भी हो सकते हैं, वो बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बर्डन्स भी हो सकते हैं। इसका केस भी पढ़ेंगे, इसको इसमें पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन भी होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इसमें कूपर वर्सेस कूपर केस भी देखेंगे, वी गोना सी एवरीथिंग। Essentials of valid transfer. With regard to the law of property, a transfer is a process of conveying rights and liabilities with respect to property by one person to another. It is therefore with the formation of agreement culminating into contract the transfer of property takes place. The transfer may be by a agreement between parties or by contract, explained in the upcoming chapter. The chapter we're gonna see on contracts, right? अब essential क्या है, भाई लिविंग पर्सन पे होना चाहिए, property should be free from encumbrances, hindrances, or any form or of transferable nature. लीज पेंडेंस वाले डॉक्ट्राइन में पढ़ेंगे आगे। टीपीए के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 में मेंशन्ड है। वी गोना सी ट्रांसफर शुड नॉट बी फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। उसके साथ में होना चाहिए पर्सन इज लीगली डिस्क्वालिफाइड, whoever is competent to transfer is entitled to that property or is basically controlling the property on behalf of the owner, is authorized to dispose of the property, should be made according to appropriate mode of transfer, सारी formalities होनी चाहिए, registration, attestation etc they should be complied with। स्टेशन में आपका स्टैंप लगती है जब आप दो विटनेसेस के सामने उसको टेस्ट करते हो, ठीक है, साइन वगैरह करते हो, वही होता है। In case of conditional transfer, the interest should be created on the condition. Interest should not be immoral, impossible, or opposed to public policy. Conditional होता है कंटिजेंसी, कंडीशनल ट्रांसफर, ठीक है, कि मान लो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब आप 100 मार्क्स लाओगे मैथ्स में, मैंने ये बोल दिया। तो मैथ्स में 100 मार्क्स लाने को बोला, हमने ये नहीं बोला कि ऑफकोर्स, ये बोला कि प्रॉपर्टी में तभी ट्रांसफर करूंगा जब तुम ड्रग्स कंज्यूम करोगे, ये तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता, ये तो वैलिड ट्रांसफर है ही नहीं, कि इमोरल है, ऑफ कोर्स इलीगल है, ड्रग्स तो इलीगल है, एंड देयर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज वेल। ओके, तो हमने देख लिया कि यार ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, अगर हमें वैलिड ट्रांसफर करना है, बंदे को 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए, बंदे को मेंटली साउंड होना चाहिए, बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की। उसके बाद कंडीशनल ट्रांसफर में अगर हम देखें कि आपका जो पर्सन है वो इमोरल या फिर इलीगल या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ना हो, नेसेसरी फॉर्मेलिटी सारी की सारी फॉलो हो, प्रॉपर्टीज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनकम्बरेंसेस, है ना, एंड देन जस्ट दैट। बट लिविंग पर्सन के बीच में होती है, डाइंग में नहीं होती। अब हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर, सिंपल आता है इसमें भी क्वेश्चन। मोड ऑफ ट्रांसफर, एटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, पेमेंट ऑफ फी। मैडम पिल्ले वर्सेस द बदाकली केस, केस में सिंपल 100 रुपीज के बारे में बोला गया था कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर हो, तो आपको उसको ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दिस वाज सेड इन मैडम पिल्ले वर्सेस द बदाकली केस।
अगेन 100 रुपीज का बेंचमार्क से सेटअप था, जब भी केस आया था उस टाइम 100 रुपीज बहुत ज्यादा होते थे। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर 100, then transfer has to be made only by the registered instrument, जो बताया। If the property is tangible, with the value of property is less than rupees 100, then transfer has to be made by only delivery. Whereas for intangible transfer, transfer has to be made only by a registered instrument. It contains records of the owner of the property, for example, shares, bonds, etc. अब आते हैं attestation. A registered instrument must be attested by at least two witnesses. The definition of attestation is given in Section 3 of the Transfer of Property Act. Attestation means affixing the signature of the instrument of the transfer of property. Witness should mark their signature too on the instrument with the intention to attest, and the intention behind including this provision was to ensure that the transfer was done with the free will of the executant. आपको किसी ने force नहीं करा, या फिर इलीगल, इमोरल या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाली बात नहीं आई। रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज एन एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन पार्टीज टू द ट्रांसफर मस्ट बी प्रेजेंट टू अफेक्ट their signatures, the document and complete the transaction with respect to the immovable property. And while doing so, the document for transfer must clearly mention the rights, obligations, liabilities of the parties, and must take place finally by fixing the seal of the registrar's office, which shall be subsequently included. Registration Act is to consolidate the enactments related to the registration of documents. Registration means according to the contents. Section 17 of the Indian registration deals with the documents that are very compulsory to register. रजिस्टर ऑफ ऑफिस की स्टैंप लग गई, राइट्स, लाइबिलिटीज, बर्डन्स, ड्यूटीज, सब कुछ आपने उस पे कॉस्ट फिक्स कर दिया। सिग्नेचर्स पार्टी ने फिक्स कर दी। यहाँ पर आपके जो विटनेसेस हैं, विटनेसेस ने अपना करा अटेस्टेशन है। विटनेसेस करते हैं कि हमारे सामने भाई डील बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल गुड फेथ में है, यहाँ पर पार्टीज ने करा। ठीक है। म्यूटेशन, वंस द प्रॉपर्टीज बी ट्रांसफर्ड विद द वे ऑफ रिलिक्विशमेंट और सेल or give deed in the name of the recipient, it's also important to have the transfer recorded in the municipal records with the way of mutation. Municipal records वो न्यूज़पेपर में भी छपती है। अगर किसी को लेट्स सपोज डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट रेज कर सके। स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम भी बोलता है कि मान लो हमने म्यूटेशन कर दी, हमने 10 दिन का समय दे दिया, या फिर यूजुअली 10 दिन में बहुत कम है, 30 डेज दे देते हैं कि किसी को डिस्प्यूट हुआ इस पर तो आप प्लीज आ जाओ इधर, यू आर वेलकम, राइट। बट ऑफकोर्स नहीं होता यूजुअली लोगों को, तो फिर अगेन अगेन वो रिलेटिव्स का ही होता है। ठीक है। ओके। रिलिंक्विशमेंट होता है जब प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाती है, वो इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन एंड ऑल से, ठीक है, वो खुद ही बीक्वत हो जाती है आगे। ठीक है। ओके। देन पेमेंट ऑफ अ फी, स्टैम्प ड्यूटी इज अवेलेबल। ये स्टैम्प ड्यूटी लगती है उस पर्टिकुलर स्टेट की। डिफरेंट स्टेट लॉज होते हैं, डिफरेंट रुपीज होते हैं। 500 रुपीज का स्टैम्प लगता है, 100 रुपीज का स्टैम्प लगता है ना। We'll give a read to this case very quickly. The plaintiff, being the first wife, made a claim for the maintenance to the husband. The husband only transferred his land of value 100 rupees to the plaintiff. Later, he executed an instrument of sale in favor of the defendant of the same property. The plaintiff initiated a suit stating the transfer was initially made in her favor and subsequent sale was not valid. Defendant stated the transfer in favor of the plaintiff failed for the want of the registered instrument, and the court held that the plaintiff acquired a title by way of oral transfer and she is entitled to property through the instrument of sale was not registered, right। इसमें ये बोल रहे हैं कि ओरल ट्रांसफर ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। कोई भी प्रॉपर्टी जो 100 रुपीज से ऊपर की हो, ठीक है, उस पर नहीं चलेगा। तो उसके केस में आपको रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। एंड प्लस क्योंकि इसमें अगर हम फैक्ट्स दोबारा से अगर हम देखें, तो कि जो प्रॉपर्टी है इधर की केस में वो क्या है, सिर्फ 100 रुपीज की है। तो सिर्फ 100 रुपीज में ओरल ट्रांसफर चलेगा। 100 रुपीज से ऊपर की बात आएगी तो उधर के केस में ओरल ट्रांसफर नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चलेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ एक्वायर्ड अ टाइटल बाय वे ऑफ ओरल ट्रांसफर, शी इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल, दो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल वाज नॉट रजिस्टर्ड। सो इन दैट केस शी इज एंटाइटल्ड, क्योंकि ओरल ट्रांसफर कर रहा है एंड प्लस ओरल ट्रांसफर क्यों कर रहा है, 100 रुपीज से या करके 101 रुपीज की, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा रिटर्न। दो डॉक्ट्रिन आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। ठीक है। सिंपल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ योर इलेक्शन, principle of doctrine of election, section 35 of TPA, if a person with a transfer gets two selections, a burden and a benefit, he has to accept both the benefit and the burden or none. He cannot accept the benefit or reject the burden in single transaction. In other words, with claiming advantage of an instrument, the burden of the instrument should also be accepted.
A sells his garden, illustration देखना है, A sells his garden as well as his house through one instrument to B. Whereas B wants to retain only the house and wants to cancel the transfer regarding the garden. According to the doctrine of election, B has to retain the garden. If he wants to retain the house or cancel the whole transaction, and B cannot retain the house and cancel the transaction regarding the garden. The doctrine of election is based on the principle of equity, that one cannot take what is beneficial to him and disapprove what is against him under the same instrument. Latin maxim quid approbo non reprobo means that no one can approbate and reprobate. In other words, a person cannot accept a thing or reject another in the same instrument. The maxim is one of the underlying principles of doctrine of election. In simple words, where a person takes some benefit under the redo instrument, he must also bear the burden. Would approbo, non-reprobo. Approbate and reprobate means to approve and disapprove. This principle is based on maxim, which translates to that which I approve, I cannot disapprove. Therefore, an individual has to either accept the whole contract order, accept or reject the whole. Right. तो अगर हम इसको देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल में क्या था, ए ने चीजें बेची, एक हाउस है, हाउस के साथ गार्डन अटैच्ड है, ठीक है, हाउस एंड गार्डन एक साथ ही है, एक गेट खुलता है, एक गार्डन है और हाउस बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होता है बी के साथ। अब क्या हुआ, बी ने बोला कि आई वांट जस्ट द हाउस, आई डोंट वांट द गार्डन, राइट? सो व्हाट इज हाउस? हाउस इज अ बेनिफिट फॉर हिम, राइट? व्हाट इज गार्डन? गार्डन इज अ बर्डन फॉर हिम, राइट? उसने बोला गार्डन मेरे लिए बर्डन है, गार्डन को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ गार्डनर, ठीक है, इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, सो दैट केस आई जस्ट वांट द हाउस। या तो आप ये पूरी डील ले लो, या तो गार्डन ले लो, या फिर पूरी डील छोड़ दो, राइट? सो दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, जो सेक्शन 35 में मेंशन है टीपीए के। इसका लीगल मैक्सिम रिमेंबर, क्विड अप्रोबो नॉन रिप्रोबो, यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट विच आई अप्रूव आई कैन नॉट डिसअप्रूव। इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो मैंने ले लिया, जो मैं डिसअप्रूव करता हूँ, जो मेरे लिए बर्डन है उसको मैंने छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना, दोनों पार्टीज का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, इसका केस लॉ है। इस केस में डिटेल में नहीं जाना, ब्रिटिश लॉ का केस है, कूपर वर्सेस कूपर, रिमेंबर लैंडमार्क केस है। Let's give a read to it once. Principle of doctrine of election was explained by the House of Lords in the leading case of Cooper versus Cooper. House of Lords होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस होता है, ठीक है। लोअर हाउस वही हाउस होता है जैसे हमारा लोकसभा होता है, बिकॉज हमारी जो लोकसभा राज्यसभा है ये बिल्कुल कॉपीड है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रिंसिपल से। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज कंटेम्प्रेरी टू राज्यसभा एंड दिस हाउस ऑफ कॉमन्स इज कंटेम्प्रेरी टू लोकसभा। यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ओके, Co versus Cooper, Lord Hathor explained the principle underlying the doctrine of election in the following words. There is an obligation on him who takes the benefit under the will or the instrument to give full effect to the instrument under which he takes the benefit, and if it is to be bound that instrument purports to deal with something which is beyond the power of the donor, राइट, जो मतलब चीजों को दे रहा है, ठीक है, और सेटलर टू डिस्पोज ऑफ, बट टू विच इफेक्ट कैन बी गिवन विद द कॉन्करेंस ऑफ हिम who receives the benefit under the same instrument. The law will impose on him who takes the benefit the obligation of carrying the instrument into full and to complete force and effect. Right? Again, सब चीज एक्सेप्ट करनी है, बेनिफिट भी बर्डन भी। सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी embodied the doctrine of election. The again the court also had the doctrine of election applied on every instrument and on all types of property. ठीक है, तो just you don't have to write about it even in the exam. Just mention Cooper versus Cooper because the objective is the same, right? Under the will or instrument to give full effect to the instrument under which he gets the benefit, and if it is to be found that instrument purports to deal with something which is beyond the power of the donor or settler to dispose of, but to which effect can be given by the concurrence of him, right? He's still giving it, right? Even if he knows that that is beyond him. So in that case, of course, वो आपको बेनिफिट को पूरा उस सेंस पे लेना पड़ेगा, पूरा उसमें कि वो उसका बर्डन भी आ रहा है, बेनिफिट भी आ रहा है, ताकि इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो हो। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्पेंडेंस देखते हैं। डिस्पेंडेंस है सेक्शन 52 में, मींस पेंडिंग सूट। Doctrine states that the property under a pending suit should not be transferred to the third person during a pending suit in such a way it affects the rights of the other party concerned with the property. That means that no new right should be created by the way of transfer of property during the pendency of the suit. It emerged from Latin maxim meaning nothing new should be introduced in the pending litigation. इसको pronounce करने का तरीका है ut light pendent nihil innovateur. Okay, so ut light
pending nihil intervere, meaning the nothing new should be introduced in the pending litigation. तो इस केस में we are talking about कि nothing new should be introduced in the pending litigation. Objective is to subjugate all the parties to the pending litigation of the property to the authoritative decision of the court. And because क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है हम उसको बीकवत नहीं कर सकते, ना ही हम उसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्प्यूट है तो हम उसको बेच नहीं सकते किसी को। अगर कोई बेचता है इसको विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन सब जूडिस। ठीक है, अब क्या होता है, जो सब जूडिस होता है, सब जूडिस का मतलब होता है इन सूट। तो अगर कोई प्रॉपर्टी सब जूडिस में हो या फिर इनफैक्ट कोई भी चीज सब जूडिस में हो, तो उसका मतलब है कि वो कोर्ट के सामने है, वो अभी पेंडिंग चल रहा है। कोई भी चीज अगर पेंडिंग चल रही हो कोर्ट के सामने, सो इन दैट केस हम ऑफ कोर्स उसको सेल आउट नहीं कर सकता। अगर हमने उसे सेल आउट कर दिया तो इन दैट केस जो भी पार्टी उसको खरीद रही है उसको बाउंड रहना पड़ेगा बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। वो चिंता, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं कि जो लेट्स सपोज जो आपका जी प्रॉपर्टी मान लो जो ट्रांसफर हो गया राइट, किसी डिस्प्यूटेड लैंड का वो ट्रांसफर हो गया, इन दैट केस ट्रांसफर नल एंड वॉइड नहीं होगा। लेकिन बस इतना होगा कि जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो पार्टी को बाउंड रहना पड़ेगा। लेट्स सपोज डिसीजन आएगा, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। लेकिन ए का सी के साथ डिस्प्यूट चल रहा था इस प्रॉपर्टी, ठीक है, और ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, बी के पास प्रॉपर्टी है। अभी सेम यही इस प्रॉपर्टी का मैटर ही कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने बोल दिया, लेट्स सपोज मान लो कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो आपका गार्डन है, गार्डन 2 स्क्वायर यार्ड्स का है, ठीक है। इस 2 स्क्वायर गार्ड्स के गार्डन का है, इसको आप 0.5 स्क्वायर यार्ड्स आपको बी को देना पड़ेगा। आपको सॉरी सी को देना पड़ेगा, सी जिस बंदे के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो वो जो पूरा 2 स्क्वायर यार्ड्स का गार्डन है हाउस के साथ, उसका क्योंकि अब 0.5 आपको देना पड़ेगा आप सी को जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो उस केस में बी को तैयार रहना पड़ेगा कि यस आई नीड टू गिव दैट थिंग टू सी एज वेल बिकॉज आई हैव टू बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो इमेजिन कर लो, दो घर है, दो घर के पास एक मतलब एक पतला सा फेंस लगा हुआ है, एंड देन द थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक okay, so the person has to be bound with the decision of the court, so it makes sense, okay। Okay, to the authoritative decision of the court हो गया। doctrine reflects the control which a court acquires over property involved in pending suit is its final judgment। it's transferred that of immovable property cannot be transferred। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होती ऑफ कोर्स, बट किसी ने कर दी तो गलत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली अगेन किसी को कर रहे हो तो लाइट में रखकर करो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट लीज पेंडिंग, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी इन क्वेश्चन। प्रॉपर्टी लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर्ड एंड शुड इफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफर। राइट्स तो ऑफ कोर्स इफेक्ट कर रही है। ए और सी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, सी का भी तो कुछ उसमें है ना राइट प्रॉपर्टी का, इसलिए तो डिस्प्यूट चल रहा है। तो शुड इफेक्ट द राइट्स ऑफ अदर पर्सन इज सी। A has litigation determining the title of the property with X. During the period of litigation, A initiates a sale of property in favor of B. Again, same example here. According to the doctrine of lease pendants, the property cannot be sold because the property is involved in litigation. Simple. Okay, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का केस है देवराज डोगर एंड अदर्स वर्सेस द ध्यानचंद जैन केस एंड अदर्स इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ सेक्शन 52 of the TPA and set the preconditions as follows. A suit or a proceeding in which any right to immovable property must be directly or specifically in question must be pending। ओनरशिप का इशू है, राइट का इशू है, ठीक है। इट शैल नॉट बी कल्यूसिव वन। कल्यूसिव मतलब होता है छुपते छुपाते फ्रेंडली। ए और सी में डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं है कि यार ये तो ए और सी तो यार फिर भी एक साथ रहते हैं, मजे करते हैं, कुछ और प्लान कर रहे हैं कोर्ट के अगेंस्ट कि यार चलो कोर्ट का डिस्प्यूट चल ही रहने दो, हम चलो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं और कोर्ट में भी चलो डिस्प्यूट चलता रहे। ऐसे कल्यूसिव नहीं होना चाहिए, कोर्ट का भी टाइम होता है, ठीक है। Such a property during pendency of such a suit or proceeding cannot be transferred or otherwise dealt with any party to the suit or proceeding as to affect the right of any other party thereto under any decree or order which may be passed therein except under the authority of the court। In other words, any transfer of such property or dealing with such property during pendency is prohibited except under the authority of the court if the transfer or otherwise dealing with the property by any party to the suit affects the right of any other party to the suit or proceeding under any decree order which may be passed in the said suit or proceeding। आपके यहाँ पर देखो लाइन बाय लाइन इफ आई गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सो
Such property during the pendency of such a suit or proceeding cannot be transferred to otherwise dealt with any other party as to affect the rights of the person under any degree or order which may pass therein except under the authority of court. तो कोर्ट के अथॉरिटी से ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ये आप ऐसे ही नॉर्मली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चल रही है तो। ठीक है, कोर्ट के ही कहने पर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत ऑब्वियस है, अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिस्प्यूट में कोई प्रॉपर्टी चल रही है तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। द कोर्ट ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व सेक्शन 52 of the act does not declare a pending right transfer. By the way, pending right होता है during proceeding of the suit sub judice, ठीक है, by a party to a suit as void or illegal, but only makes the pending right purchaser bound with the decision of the pending litigation. Hardev Singh versus Gurnail Singh में mentioned है। Thus, if during the pendency of any suit in a court of competent jurisdiction in which any right of an immovable property is in question, such immovable property cannot be transferred by any party to the suit as to affect the rights of the any other person to the suit under any degree that may be made to such an effect, to such a suit. Now I think it makes sense. ठीक है, किसी के राइट्स इफेक्ट होते हैं अगर आप प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो उसको नहीं करना है ऐसा। आई होप इट मेक सेंस नाउ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने इस पर क्वेश्चन आएगा, यू गोना मेंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज ऑफ कोर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, यूटिलाइट पेंडेंट निहिल एंटोवेयर, मीनिंग नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, वही सेम चीज रहेगी पेंडिंग लिटिगेशन में, यू गोना नॉट इंट्रोड्यूस एनीथिंग विच इज पर्टिकुलर न्यू इन दिस। ठीक है, लिटिगेशन में of course you're not going to say sell out it, right, sell it out if it is already going under litigation। ठीक है, ut lit pendant nihir intoware। ओके, मोड ऑफ ट्रांसफर पर आते हैं। बहुत सारे ट्रांसफर की मोड है, सेल है, लीज है, एक्सचेंज है एंड गिफ्ट है। लास्ट में इसका डिफरेंस है, पहले डिफरेंस देखते हैं ज्यादा समझ में आए। सेल होता है पैसों के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। सपोज ए हैज सेंड हैज सोल्ड आउट समथिंग टू राम। ठीक है, ए और बी ले लेते हैं। ए ने अपना घर बेच दिया बी को, और वो भी 50 lakhs में। तो बी ने 50 lakhs दे दी ए को, ट्रांजैक्शन खत्म, दिस इज सेल। लीज, ए ने अपना 1 BH का फ्लैट रेंट पर चढ़ाया बी को। ठीक है, बी उसको प्रति मंथ 30,000 रुपीज देता है एज रेंट। रेंट या लीज एक ही बात है। एक्सचेंज, ए के पास गार्डन था, उसने बी को बेच दिया। बी के पास गाड़ी थी, इन रिटर्न तो ए को दे दी। कोई एक्स्ट्रा मनी यूज नहीं करी, बस एक्सचेंज करा है, बाटर सिस्टम टाइप। गिफ्ट, ए ने गाड़ी अपनी गिफ्ट कर दी बी को विदाउट एनी मनी, गिफ्ट डीड लिखकर, दैट इज गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉर प्राइस, ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती, कंसिडरेशन होती है अनदर प्रॉपर्टी, अगेन जो मैंने बताया एक्सचेंज कर रहे हो। यहाँ पर कंसिडरेशन प्राइस होता है, यहाँ पर होता है रेंट। मोड में सारी डीड्स को रजिस्टर करना पड़ेगा, सेल डीड, लीज डीड, देन आपके एक्सचेंज डीड, एंड देन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो भाई रजिस्टर करने की नीड नहीं है उसको। गिफ्ट में भी मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं है करने के रजिस्टर, बट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में देखना पड़ेगा। Sale means transfer of ownership, right? To possess something of the property in exchange for price. Section 54 of TPA, seller is a person who transfers the property, and buyer is the person to whom the property is being transferred. Consideration is the sale is usually money में होता है। ठीक है, एंड अगेन मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया था, ए ने घर बेच दिया बी को पैसों के लिए। फॉलोइंग एसेंशियल्स देखते हैं। देयर शुड बी टू पार्टीज, बायर और सेलर। भाई कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिस पर बात हो रही है प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना अपकमिंग घर बी को बेचूंगा 50 lakhs में। ठीक है, और वो घर बन रहा है अभी, ऐसे नहीं होगा, जो एग्जिस्टेंस में है जब वो घर बन जाएगा तब। कंसिडरेशन प्रॉपर्टी शुड बी कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर शुड बी इन मनी, 50 lakhs पैसों से आएगा। एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ऑफ कोर्स। तीन प्रिंसिपल्स, इमोरालिटी, इलीगैलिटी एंड ऑफ कोर्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम, अच्छा इसे पैसों से ही करोगे, इसको अब जूलरी से करोगे तो वो एक्सचेंज में आ जाएगा। ठीक है, लीज,
A lease under the transfer of property acts as a contract by which one party transfers the right to enjoy the land, property, services, etc. to another for a specified period of time. ठीक है, then usually in return for periodic payment but does not constitute a sale. It is known as a lease. Section 105 of TPA में mentioned है, lease can be done only of an immovable property. Lease is the transfer of property, right to enjoy the property for a specific period of time in consideration for the price. Lessor is a person who lets out the property for lease or transferor, and the lessee is a person to whom the property is leased or transferee in the lease. ठीक है? The lessee can also sublet the lease, and relation between the lessee and the sublessee will that of the lessor and lessee. Sublease is the renting of property by a tenant to a third party for the portion of the tenant's existing lease contract. Even if the tenant subleases the property, the original tenant is still liable for the obligations stated in the lease agreement, as such as the payment of rent each month. Subleasing the consent of the landlord is legal in India. So if the agreement allows the tenant to sublease it, the tenant can sublease a portion of property to a third party. When a tenant whose name is on the lease rents a room and a portion of the property or of the property to another, it is referred to as subleasing or subletting. Tenant must pay rent and comply with the lease terms, but the principal tenant still remains ultimately liable for the lease. Example: A has basically leased his property to B, which is the one, I would say, अब 2 BHK फ्लैट. ठीक है, ओके. तो उसमें केस में क्या होता है, ही इज ऑफ कोर्स द लेसर. ठीक है, एंड ही इज द लेसी. Because subleasing is allowed, B is going to ask A, whether can I sublease someone. ठीक है, ओके. तो उस केस में बी ले ली सी को. सी इज रेडी टू लिव ऑन वन ऑफ द रूम्स ऑफ बी. ठीक है, 1 2 BHK है, तो एक रूम में बोल दिया कि आई वांट टू कीप दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू गेट रेंट फ्रॉम हिम. ठीक है, आई एम गेटिंग पुटिंग दिस ऑन सब लीज. कैन आई डू दैट? ही सेड yes. Relation between this and this, between B and C, would be similar to that of A and B. That is, between that of the lesser, lessee is going to be same as lessee and sublessee. Sublessee को liable रहना पड़ेगा lessee पर, right? कोई भी इसका डैमेज करा, इस पर लाइबिलिटी आएगी लेसी पर. ठीक है, और ये जो सब लेसर है मतलब सी, ये लाइबल रहेगा, ये लाइबल रहेगा कोई भी चीज हो तो बी की तरफ से लाइबल रहेगा. ठीक है, बी के उससे, बिकॉज ये पर्सन क्या है, इसके लिए तो बी एज अ वो ओनर ही काम कर रहा है, लैंडलॉर्ड काम कर रहा है ना. ठीक है, और सी इसमें टेनेंट हो गया. लेकिन बी देखा जाए तो दूसरी साइड से बी आपका टेनेंट है और ए आपका लैंडलॉर्ड हो गया. So in that case, this is how it works. Okay, one example is there which is similar to this only. When two persons transfer the ownership of one thing for the ownership of another, it is known as exchange. Section 118, transfer of property by the way of exchange can only be by the way of sale. Rights and liabilities of parties to exchange shall be that of the rights and liabilities of the buyer to the extent of receiving and that of the seller to the extent of giving. वही सेम बात हुई, ए ने मान लो अपना गार्डन बेच दिया बी को, और बी ने एक गाड़ी बेच दी ए को. तो जब ए अपना वो गार्डन बेच रहा है बी को, उस केस में वो हो जाएगा सेलर. और जब वो गाड़ी खरीद रहा है बी से तो वो हो जाएगा बायर. इन द सेम वे, जब बी गार्डन खरीद रहा है ए से तो वो हो जाएगा बायर, और जब बी गाड़ी बेच रहा है ए को तो वो हो जाएगा सेलर. तो इंटरचेंजेबली रोल्स बदलते हैं इधर, यही इस लाइन का मतलब है. एग्जाम्पल इज द सेम जो हमने बात करी थी. गिफ्ट पर आते हैं. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलंटरली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन इज नोन एज अ गिफ्ट. ठीक है, सेक्शन 122 ऑफ द टीपीए. Person making the transfer is known as a donor, and the person to whom it is being made is the donee. If the donee expires before accepting the gift, it is void. Suppose A and B, both of them make a contract. They do, of course, do not have to make a contract. They are doing a gift deed, right? So they're making gift deed. And in that case, what they plan to do, that A wants to transfer his immovable property hai, so his piece of land to B. B expires before receiving it. This is void. The gift deed is void. ठीक है, आप कितनी विदाउट एनी कंसिडरेशन करो. तो अगेन हमने ये पढ़ लिया, तो इसके क्या करना है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड अप द सेक्शंस आल्सो इसके. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है तो आपने सेक्शन 35 पढ़ लिया. देन आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंसी तो सेक्शन 52 पढ़ लिया. अगेन अगेन गिफ्ट का है तो गिफ्ट का आपने सेक्शन 122 पढ़ लिया. टीपीए, ये मैं सबको बोलूँ टीपीए के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ. ऑल दोस प्लानिंग टू रीड टीपीए तो उसके केस में कर सकते हो. ठीक है, देन आपके पास आपका सेल हो गया. सेल में आपने सेक्शन 52 54 पढ़ लिया. ओके, देन आपका एक्सचेंज हो गया. एक्सचेंज में सेक्शन 118 पढ़ लिया.
ठीक है, आपके पास लीज हो गया, लीज में हमने सेक्शन 105 पढ़ लिया। तो अगेन बहुत सारे इनफैक्ट सेक्शन है, जैसे सेक्शन एक 3B हमने देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं होता है, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। तो अपने सेक्शन नंबर 3B पढ़ के देख लिया। 3 clause 25 जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का पढ़ सकते हो, नीड नहीं है। Section 2 Benami Transactions Prohibition Act 1988, if you wanna read you can read it, no need. Section 2 of the Goods and Sales of Goods Act, simple. Case laws, I think if you want to read, you can go through the facts of the case. Even if it's you don't want to read it, it's completely fine. Facts of the case में like what all cases have we gone through? We have gone through Cooper versus Cooper. We have gone through Hardev Singh versus Gurnail Singh. We've gone through वो uh, Dev Dogra and others versus this Union of India. Then we have gone through a few cases only, मैडम पिल्ले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत में है, जैसे अगर मैं दोबारा से ब्रशअप करा दूं, तो फिर इन दैट केस फातिमा बेगम वर्सेस द इरफाना बेगम केस। तो इरफाना बेगम केस में हमने ये बात करी थी, बेसिकली जो सेक्शन 3 था टीपीए का वो रिआइटरेट करा था। हमने एक्सप्लेन करा था फ्रूट बेयरिंग ट्रीज क्या होते हैं, अगर याद आ रहा हो। फ्रूट बेयरिंग ट्रीज में इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होते हैं, फ्रूट्स को निकालते हैं बट ट्रीज को नहीं निकालते। स्टैंडिंग टिम्बर एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा हमने ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सप्लेन कर लिए कि उसके प्रोड्यूस के अलावा कुछ नहीं बचता, वो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, जैसे शुगर केन, पान लीफ एक्सेट्रा। देन आपके पास ग्रास के बारे में हमने बात करी थी इस पर्टिकुलर केस में, मैडम पिल्ले वर्सेस द बदरकली केस में हमने ओरल ट्रांसफर की बात करी थी कि बंदे ने ओरल ट्रांसफर कर दिया था अपनी बीवी को एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी, तो दूसरी बीवी ने उस पर केस कर दिया था कि आपने ओरल ट्रांसफर क्यों करा। तो फाइनली बोला कि यार अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, ओरल ट्रांसफर कर सकते हो। कोर्ट ने रिआइटरेट कर दिया था बाद में। ओके, देन आपका शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में हमने ट्रीज के बारे में बात करी। ट्रीज की कंडीशन थी कि यार कोई ट्री लगा हुआ है अपने सस्टेनेंस या न्यूट्रिएंट न्यूट्रीमेंट के लिए, वो ट्री को हम काट नहीं रहे हैं, वो ट्री रहेगा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ट्री को आप बिल्डिंग्स वगैरह, नॉट बिल्डिंग्स बट ऑफकोर्स रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग पर्पसेस, इफ यू यूजिंग दैट पर्टिकुलर ट्री, सो दैट केस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर कटिंग it. Apart from that, if I talk about the other cases that we had read, right? Marshall versus the Green case. Over there also we were talking about कि sale of goods act में we were basically talking about trees के बारे में, because अगर trees को एक जगह कट कर दिया तो वो movable property हो जाएगा। मार्शल वर्सेस ग्रीन में बोला था। ठीक है, सुक्रिया कोडेपा वर्सेस द गुंडाकुल केस में हमने ये बात करी थी कि अगर कोई आपने इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमने निकाली है और अगर उसमें ऑल्टरेशन दिखाई दे रहा है, राइट, उसको इंजरी हो रही है उस प्रॉपर्टी को, तो इन दैट केस वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने बात करी डिफरेंस भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में कि कौन से एक्ट गवर्न करते हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी को रिस्पेक्टिवली। हमने इवन बात करी है कि किसमें रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, किसमें रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन क्या है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की। हमने फिर फर्दर बात करी है कि आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर में एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है वैलिड ट्रांसफर। बंदे का माइंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, 18 ईयर्स का होना चाहिए, दोनों लिविंग पर्सन होते हैं, प्रॉपर्टी को लिविंग में एग्जिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी में कोई इनकम्बरेंसेस नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिस्प्यूट होना चाहिए, है ना। कंडीशनल ट्रांसफर है तो इलीगल इमोरालिटी वाले प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए। देन हमने बात करा अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, है ना। एंड देन हमने बात करी कि कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। तो पहले मोड ऑफ ट्रांसफर डिसाइड कर लेते हैं, 100 रुपीज है वो। अटेस्टेशन कराते हैं जब हम विटनेसेस से उसको साइन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब हम उसमें रजिस्ट्रार का साइन करवा देते हैं, है ना। और खुद भी हम कॉम्पिटेंट पार्टीज अपने ट्रांजैक्शन की साइन कर लेते हैं, देन राइट्स अपने ऑब्लिगेशंस वगैरह सब लिस्ट डाउन करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी म्यूटेशन, जब म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में वो चीज छप जाती है, देन उस पर स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट स्टेट्स के मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ पर आप हो। फिर अगेन आपने दो डॉक्ट्राइन्स की बात करी, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंस। इलेक्शन में अगर आपका वो ट्रांसफर कर रहे हो, कोई राइट ट्रांसफर कर रहे हो, तो बर्डन भी दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर वो ट्रांजैक्शन इन होल उसको कैंसल आउट करना पड़ेगा। कूपर वर्सेस कूपर केस डिस्कस कर लिया, क्विड अप्रोबो नॉन रिप्रोबो डिस्कस कर लिया, उठ लाइट निहिर इनटू वेयर हमने डिस्कस कर दिया, आपका जो लिस्पेंडेंस का है। देन हमने 4 मोड्स ऑफ ट्रांसफर डिस्कस कर लिए, सेल, लीज, एक्सचेंज एंड देन गिफ्ट डीड, राइट। एंड इसके बीच के डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर लिए। डिफरेंस में सच कुछ नहीं है, सब में डीड लगती है, ठीक है, सब में आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है, सब में आपको देन कंसिडरेशन भी होता है, बस गिफ्ट में आपका कंसिडरेशन नहीं होता। इवन आप
डिफरेंसेस में इनके सेक्शंस भी लेआउट कर सकते हो, जो हमने ये सेक्शंस पढ़े हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाना है, देन यू कैन टॉक अबाउट इनकी डेफिनेशंस क्या है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स क्या है. So this was the video finally. I hope that you liked actually what I had put together for you. This is the thing, I think this chapter is also really really important. So you can go through it once, you can watch this video once again if you want to revise. And if there are any improvements, then you can actually reach out to me. I shall really try to incorporate all those in my upcoming videos. And yeah, that's it. These are some of the questions there in the NCRT back exercise. You can easily do so. If you have any doubts regarding that, you can also email me. My email ID is also there in on my YouTube channel. You can, and if you want, I shall also make a separate video on NCRT solutions as well. But I think these would be pretty simple now because we have discussed each and everything in the chapter. We have not even left a single thing. So thank you so much, everyone. I hope it was a very wonderful session. Thank you so much.